Hello my dear students, welcome to all in social science class. Dear students, today in this module we are going to discuss 19th chapter, that is our state governments. So let's get start our new chapter, our state governments. Dear students, India is the 7th largest country in the world with an area of 3.28 million square kilometer. It is not possible to govern, or you can say rule, such a vast country. So keeping in mind the administrative convenience, our country has been divided into 28 states and 8 union territories. Each state has its own government which run the administration of the concerned state. Union territories are administered by the President of India through a Lieutenant Governor or Chief Commissioner. You can see here the Lieutenant Governor of Delhi, Anil Baijal. So the students, इंडिया जो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और इसका टोटल एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है. यू नो वेरी वेल, इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है कि अकेला पर्सन इजीली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है. हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है जिससे उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूल बड़े इजीली चलाया जाता है. हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चलाते हैं. यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के प्रेसिडेंट के थ्रू एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के थ्रू चलाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, the central government and the state governments are independent of each other. The powers between the center and the state has divided on the basis of 3 lists. These are union list, or you can say center list, which includes 97 subjects. All the important subjects of national importance comes under the union or center list. Example, defense of the country, foreign affairs, banking, etc. The state list includes 66 subjects. Example, police, public health, hospitals, trade and commerce. And the concurrent list, which includes 47 subjects like education, forest, marriage, etc. So the central government is more powerful than the state government. स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट्स एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं बिकॉज सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की पार्ट्स 3 लिस्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट लिस्ट दैट इज यूनियन और स्टेट लिस्ट जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है. सेकेंड लिस्ट दैट इज स्टेट लिस्ट. इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाती हैं. थर्ड टाइप की लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं. इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स को लॉ बनाने का राइट होता है. बट कभी कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट की सिचुएशन हो जाए तो सिर्फ उस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए कानून ही इम्प्लीमेंट होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि एक तो उसके पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके पास रिसोर्सेज और फाइनेंस भी यानी धन भी स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है. बट फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी एक अलग आइडेंटिफिकेशन होती है और फेडरल गवर्नमेंट में उनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है. फेडरल गवर्नमेंट मीन्स where parts are divided into the 2 main governments like center and the state governments. Dear students, let's discuss about the state legislature. In most states, the legislature has only one house, that is
legislative assembly, which is also known as Vidhan Sabha. Some states have two houses, that is Legislative Assembly and the Legislative Council. Legislative Council is also known as Vidhan Parishad. The states which have two houses are Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh. So dear students, मोस्टली स्टेट्स में लेजिस्लेचर यानी विधान पालिका का एक ही हाउस होता है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिसे विधान सभा भी कहा जाता है. ओनली 6 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहां लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद के नेम से भी जाना जाता है. स्टेट्स जहां 2 हाउसेज हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. द मिनिमम नंबर इज 60 and maximum cannot be more than 500. The member of assembly are directly elected by the people. To become a member of legislative assembly, the minimum age to be 25 years. Some seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. Uttar Pradesh is the largest legislative assembly with 404 members, whereas the smallest legislative assembly is Mizoram with 40 members only. So dear students, लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ मेंबर्स उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड होते हैं. एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम मेंबर्स की जो संख्या है वो 60 और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं. 500 से एक्सीड नहीं हो सकते. तो एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के थ्रू इलेक्टेड होते हैं. और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए. लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं. फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है. इसमें 404 टोटल जो है मेंबर्स हैं, जबकि मिजोरम देश की स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसमें सिर्फ 40 मेंबर्स हैं. द टेन्योर और वी कैन से टाइम ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years, बट इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, it can be dissolved earlier also, and the president's rule is imposed in that state. So बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड 5 years तक का होता है, बट अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करें तो इसे पहले भी डिसॉल्व यानी भंग किया जा सकता है और उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. मीन्स उस स्टेट में सिर्फ फिर चीफ मिनिस्टर का रूल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के थ्रू चलाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर. द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट इट्स बिजनेस. सो बेटा, लोकसभा की तरह ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का फर्स्ट हाउस होता है, उसमें भी एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है. स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग की अध्यक्षता करता है और उनके कामकाज का संचालन भी सुचारू रूप से चलाता है. डू यू नो स्टूडेंट्स अबाउट यूनिकैमरियल एंड बाइकैमरियल लेजिस्लेचर? बेटा, यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर इज दैट which has only one house, and the bicameral legislature is that which has two houses. For example, Haryana has a unicameral legislature and Uttar Pradesh has a bicameral legislature. Means unicameral जिस स्टेट की legislature यानी विधान पालिका का सिर्फ एक हाउस होता है, only legislative assembly, और we can say विधानसभा, उसे यूनिकैमरियल कहते हैं.
और जिस स्टेट की विधान पालिका में 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे बाइकैमरियल यानी द्विसदनीय विधान पालिका कहा जाता है। एग्जाम्पल, हरियाणा स्टेट में लेजिस्लेचर का सिर्फ एक ही हाउस है, जबकि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की विधायिका में 2 हाउसेज हैं। लेट्स ट्राई टू नो मोर अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल is a permanent house of Vidhan Sabha, as we have Rajya Sabha in Parliament. Legislative Council or Vidhan Parishad cannot be dissolved. The term of Legislative Council members is 6 years. 1/3 of its members retired after every 2 years, as in Rajya Sabha. The Vidhan Parishad elects its chairperson and deputy chairperson. सो बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेचर का परमानेंट हाउस है, जैसे कि पार्लियामेंट में राज्यसभा परमानेंट हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व यानी भंग नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 इयर्स तक का होता है, बट इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ले लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद अपने मेंबर्स में से ही एक चेयरपर्सन और एक डिप्टी चेयरपर्सन को भी इलेक्ट करती है। मीन्स चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव इसके मेंबर से ही होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 40 इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। Minimum age is to be a member of Legislative Council is 30 years. So the students, Legislative Council में minimum number of members 40 तक होते हैं और उस स्टेट की Legislative Assembly के 1/3 मेंबर से ज़्यादा वो नहीं हो सकते। Legislative Council का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 years है। So the students, in this picture you can see the Legislative Council. Dear students, look at this map of India. In this map of India, states and union territories are shown. Do learn these states and union territories along with their capital. So, dear students, today we have discussed about the 2 houses of the state legislature, Legislative Assembly and Legislative Council. In next module, we will discuss about the functions of the state legislature and the parts of the governor. Thank you. Stay blessed and stay happy. Bye-bye.